ہے. پھر بھی اختر جان مینگل، آپ جناب یا جتنے بھی اور بلوچ نیشنلسٹ ہیں، وہ میجورٹیرین پارلیمنٹ یا پنجاب کی ہیجمنی نیشنلسٹ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں پاکستان میں کیسے کم کرے گی؟ اسٹل ڈو یو تھنک the only problem of بلوچستان is military establishment؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں تو پنجاب کی ہیجمنی ویسے ہی ہے، آپ اس کو کم کیسے کریں گے؟ تھینک یو. شکریہ. آپ نوجوان نے جو سوال کیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف بلوچستان میں ہے، مجھے خود سوال پہ بھی ہنسی آ رہی. اب تو یہ جو ہے پورے ملک میں پھیل چکا ہے. بلوچستان کی سیاست میں ایک زمانے میں 1947 سے جو ہے، جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی، بلوچستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رکھ دیا گیا تھا. اور ہم اس وقت سے چیختے بھی تھے، چلاتے بھی تھے، ایوانوں میں بھی بولتے تھے، کسی کو ہماری بات کا یقین نہیں آیا. اور جس طرح مسنگ پرسنز کے کیس کے بارے میں ہم لوگ پوائنٹ ریز کرتے تھے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کیسی بات کرتے ہو، کبھی لوگ بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی سیاسی قیادت بھی مسنگ ہوتی ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ مسنگ پرسنز اب صرف بلوچستان میں نہیں ہے، اور بلوچستان کے پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، بلکہ آپ کے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے علاقوں سے بھی آپ کو مسنگ پرسنز کی جو ہے گواہیاں ملیں گی. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک چھوٹ دی گئی تھی، بلوچستان کو جو ہے اس تشت میں ڈال کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عربیوں کا وہ اونٹ ہے جس کو اگر سر رکھنے کی جگہ دی جائے گی تو وہ تمبو سے جو ہے مالک کو باہر نکالے گا. اور یہی ہوا ہے. اس وقت مجھے آپ بتائیں کہ کون سا وہ ادارہ ہے ملک کا، آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں، عدلیہ، آپ کی میڈیا، آپ کی سول سوسائٹی، یہاں تک کہ بھائی میرے میاں بیوی کے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو ہاتھ نظر آتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے جب ڈائلاگ ہوئے تھے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں سے جب اپنے نکات رکھے تو انہوں نے ہمیں ڈائیورٹ کیا کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی، تو یہ کسی سے ڈر کی چھپی بات نہیں، کیونکہ جب بااختیار لوگ اپنی بے اختیاری کا رونا ہمارے سامنے، ہم بے اختیاروں کے سامنے روتے تھے تو ہمیں بھی ان پر رحم آتا تھا، اور پھر ہم نے ان سے بھی بات کی. اور جب ان سے بات ہوتی تھی، آج نہیں، کل نہیں، 4 دے دیے، 2 دے دیے یا 8 دے دیے، اسی طرح وہ مسنگ پرسنز کو ہمارے حوالے کرتے رہتے تھے. تو یہ سوچ کہ اسٹیبلشمنٹ کا دائرہ اختیار صرف ہمارے بلوچستان کی سیاست میں ہے، پورے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، بیکاز ہم ڈیکورم رکھیں گے لیگل کانفرنس کا. میں نے آپ کو موقع دیا سوال کا، آپ کا وقت تھا، اب کسی اور کا وقت ہے. جی سوال اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ سوال زیادہ نہیں لینے، مگر مجھے پھر بھی 2 سوال تو لینے پڑیں گے کیونکہ لوگ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی میرا نام محمد سلیم ہے، بلوچستان لورلائی سے تعلق ہے میرا، بائی کاسٹ میں بھی ناصر ہوں. اختر مینگل صاحب، آپ سے سوال ہے میرا کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے 18 امینڈمنٹ کو ایک مقدس گائے کی طرح جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس میں مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی یہی ہے، اور لاسٹ ٹائم 2010 میں یہی بات ہوئی تھی کہ اس میں فردر ٹائم آفٹر 5 ایئرز اس میں جو امینڈمنٹ مزید ہونی ہے. جب امینڈمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
KNFC अवार्ड जो 8 है वो कंडक्ट नहीं हो रहा, जिससे बलूचिस्तान को कुछ फायदा होगा। जी। हमारा एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अभी भी जी। फेडरल के पास है। इसी तरह पंजाब और जी। बलूचिस्तान के दरमियान जब वाटर एग्रीमेंट हुआ था अभी तक वो पेंडिंग है। और जी। हमारा चेयरमैन साहब से एक सवाल है कि बात आप बात करते हैं कि आए बैठ के नेगोशिएशन, बलोचों ने जब भी नेगोशिएशन किए तो उनको अभी भी एक फोटोग्राफर जो थे उसकी लाश मिली है, और दूसरी तरफ अभी मोहसिन दावड़ को भी गोलियां मारी हैं और इनके 4 से 5 साथी उनको भी जो है जख्मी कर दिए गए। मेरा ख्याल है कि आसमा जंगी कॉन्फ्रेंस उनको भी बुलाना चाहिए। सर आप 18 अमेंडमेंट में काइंडली बात कीजिए। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जो चेयरमैन सर आपसे रिक्वेस्ट है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 19A जो आर्टिकल है ये जो कि पंजाब में पास हो चुका है, इसके पास होने से इन्होंने जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, जिम खाना जैसे लोगों को उन्होंने छेड़ा है सिर्फ इस एक्ट के फायदे की वजह से। तो ये बलूचिस्तान में अब तक पास नहीं हो रहा, जी। ये खुदारा पास कीजिए। थैंक यू। थैंक यू जी। सईद खान साहब के लिए भी सवाल है। मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि खुशहाल काकड़ साहब भी हमारे साथ पे लाइन पे हैं, तो उनके लिए भी कोई सवाल जरूर पूछेगा। जी बेंगल साहब, आपने जो सवाल किया 18th अमेंडमेंट के हवाले से, देखिए 1973 में जब एक जिसको मुत्तफ़िक़ा आइन कहा जाता है 1973 का, जब वो मंजूर किया गया, बलूचिस्तान नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 3 अरकान थे उस जमाने में, 4 थे। चारों में से 3 ने जो है उस पर दस्तखत नहीं किए। ये उस खदशे को सामने रखते हुए, माजी को सामने रखते हुए कि फिर कोई हमारे साथ धोखा ना हो, उनको तसल्ली देने के लिए कंकरेंट लिस्ट एक शामिल की गई और ये कहा गया था कि जी 10 साल के बाद वो कंकरेंट लिस्ट जो है ना, उसमें जो आइटम्स हैं वो सुबह को मुंतकिल किए जाएंगे। वो 10 साल जाके 20 साल से 40 साल का अरसा गुजर गया और फिर 18 अमेंडमेंट की शक्ल में कुछ उसमें इजाफे करके दिया गया। हालांकि 18 अमेंडमेंट में जो कुछ दिया गया है इज नॉट इनफ फॉर द प्रोविंसेस, सूबे से मुतमईन नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अंधी आंख से एक आंसू भी आ जाए ना, वो बड़ी गनीमत है। तो इस अंधी आंखों से हमें एक आंसू का कतरा भी मिला, वो भी बहुत है। और इसी दौरान आपने देखा था कि वो 18 अमेंडमेंट भी लोगों को गवारा नहीं होती। हर बार उसी 18 अमेंडमेंट को खत्म करने का एक नया ड्रामा रचाया जाता है। हालांकि आज भी मैंने कहा है कि हमारी पार्टी उस 18 अमेंडमेंट के उन तमाम उससे मुतमिन नहीं। जिस सूबे में आपको आपके चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का इख्तियार न हो, जी। आपके आईजी को तयन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तो उस सूबाई या उस सूबे के वजीर आले के इख्तियारात को आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं। जी सईद खान साहब, मेरे भाई ने एक और सवाल भी किया और उन्होंने कहा कि जब कमीशंस बनी और उन्होंने मुज़ाकरात किए तो उनके नतीजे में लापता अफराद की लाश मिली जिन्होंने अपनी फरियाद भेजी हुई थी कमीशन के जरिए, तो फिर क्या हाल है? मैं अपने नाम के हवाले से आपको सैदाल खान, ये बड़ा हिस्ट्री वाला नाम है। जो यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं नेशनलिस्ट, उनको इसके तारीख सैदाल खान SYEDAA नाम जो जी नाम का। तो दूसरी अपना यकीनन ये जो लापता अफराद का मसला है या हमारी सूबे में है, हमारा सूबा यकीनन 2 कौमियती सूबा है और इसमें हमारे साथ हज़ारा बिरादरी है। वहाँ पे जो हम जिसको सेटलर कहते हैं, जो दूसरे सूबों से आए हुए, तो इस हवाले से लाजमी बात है किसी और टाइम हम बात करते हैं। पाठा खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल है, वो भी दुखी लोग हैं, उस चीज़ों पे भी बात हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताने के लिए हुए हैं।
देखिए कोई जरूर- क्रॉस टॉक आई एम सॉरी हम अलाउ हाँ। नहीं कर सकते, आप लीगल Cross, कॉन्फ्रेंस का डेकोरम रखें, तो- ये हमारी आपसे प्लीज एक्सपेक्टेशन है। जो यहाँ पे तमाम मामलात मुल्की आइन के अंदर रहते हुए, चाहे वो लापता अफराद के मामलात हो, चाहे और इश्यूज हो, या पे जो बयान लंबी लिस्ट है उसका अदालतों के ज़रिए, इंसाफ के ज़रिए, जस्टिस के ज़रिए उनका हल ज़रूरी है। तो कानून सबके लिए बराबर है और बराबर होना चाहिए, और अगर कहीं कमी बेशी है उसके लिए पूरा करना चाहिए, सबको मिल बैठ के करना चाहिए। पहले जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो तो एक नुक्ते पे बातचीत के लिए इकट्ठे हो जाए, और तमाम मसाइल का हल भी कानून है, जी। आईन है, इसमें कोई शक नहीं और है। ये बिल्कुल वाकई में सही है कि आप लोग पहले इकट्ठे होंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। अभी- मुझे कहा जा रहा है बार बार मॉनिटर से कि बिल्कुल खत्म करना है, क्योंकि 3:30 हो गए हैं और अगला पैनल का टाइम के अंदर हम चले गए हैं। मगर एक खातून थी, और अगर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे हम खवातीन के सवाल को इग्नोर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए खातून का सवाल, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बहन जो है बाकियों की तरह तकरीर नहीं करेगी, सवाल ही करेगी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मेरा सवाल इन तमाम सियासतदानों से है कि जब हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो जब से हम यहाँ बैठे हैं स्टैब्लिशमेंट और स्टैब्लिशमेंट, तो ये सारे सियासतदान खुद जाते हैं ना, जिसको जो मुफाद होता है वो जाता है। आज यहाँ पे ये अहद करके उठे कि हम अपने मसाइल को खुद हल करेंगे, कभी भी नहीं लाएंगे। वो एक इदारा है, हम हमें अपने इदारे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अपने मफादात के लिए जब ये लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 18 का इलेक्शन हो, वो 24 का इलेक्शन हो, तो ये सियासतदानों को दुरुस्त होने की जरूरत है। ये दुरुस्त हो जाएंगे, सब दुरुस्त हो जाएंगे। थैंक यू। मेरा ख्याल है कंक्लूडिंग कमेंट्स, और फिर खुशहाल साहब से भी कंक्लूडिंग कमेंट्स ले लें। मगर मेरे भाई सवाल होगा, बस तकरीर नहीं, सवाल। मेरा दोनों से एक सवाल सीदा खान से और दूसरा अख्तर साहब से, दोनों से एक सवाल है। सर मासूमाना सवाल है, उम्मीद है आप भी मासूमाना जवाब देंगी। सीदा खान ने कहा था कि हम नौकरी नहीं कर रहे, नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2017 में जब इनकी हुकूमत इनको जब नौकरी से निकाला तो यही लोग थे, इनकी पार्टी थी, जो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, चले थैंक यू वोट को वेरी इज्जत मच। दो। मैम सर, आज अगर आज इनकी हुकूमत है। we मैं have to conclude सिंपल this, क्वेश्चन, ये please, बलूचिस्तान sir. से We have to conclude सईद अल this खान session. बलूचिस्तान We से have to conclude this session. There is another session on IMF. I have to conclude this session. I have no choice, sir. Please cooperate with me. Please cooperate with me. Finish your question. Finish your question, please. हम मजीद सवालात, ये हमारी शर्त नहीं है, रिक्वेस्ट है। हम मजीद सवालात इस आप लोगों के साथ मायदे पे कर एक मैंने अपनी 35 साल में, मैंने 35 साल के जलसों में वोटिंग भी दिया, न मैं घबराता हूँ इन चीज़ों से। मैं इस शर्त पे जवाब दूंगा कि आखिर में आप लोगों ने कोई अल्लाह गुला नहीं करना है, नौजवानों, आराम से बात करनी है, बातचीत करनी है, उसका हल। हमारी जो कायद का था, या हमारी पार्टी के सदर का, वोट को इज्जत दो। आप जो है 2017 से लेके आप 2023 तक आप पॉलिटिकल जमातों की फिगर चेक करें, मियां नवाज शरीफ से लेके मैडम मरियम नवाज तक, कि कौन कितने इस आइन की बादस्ती के लिए, खल के खुदा के आवाज़ के लिए, आवाम की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए कौन सी जमात के कितने लोग जेलों में थी पॉलिटिकल। हमें ये नहीं, ये बड़ा सूबा, ये छोटा सूबा, इन्होंने भी सफ़र किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी सफ़र किया है। वक्तन फ़वक्तन पॉलिटिकली तौर पे मामलात, आज भी ये हमारी सोच है, हमारी जमात का सोच है कि खल के खुदा, असल ताकत खल के खुदा है, और इसके लिए अगर हमारे अंदर कोई कमी बेशी है, डायलॉग से, बातचीत से उन मसाइल का हल, बिलखसूस हम सरदार साहब से गुजारिश करेंगे, एक तो जमात के कारकुन की हैसियत से, और दूसरा इस सूबे के इस धरती के सपूत की हैसियत से, क्या डायलॉग होने चाहिए, बातचीत, सियासी पार्टियां डायलॉग के जरिए मसाइल हल कर सके, अलग गुला से, नाराबाजी से नहीं। तो शुक्रिया जी।
जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम डायलॉग का सिलसिला इस फोरम से जारी रखेंगे। नाराबाजी के लिए आपकी सियासी है, आप उधर जाएं, आप नाराबाजी करें, हम एक्सेप्ट करेंगे, मगर इधर हम कोशिश करेंगे आपके तक सवाल और इनके जवाब का सिलसिला जारी रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने सवालों का जवाब दिया। शाम के सेशन में भी मैं आ रहा हूँ 5 साढ़े 5 बजे। जी बाकी जी, तो आप उनसे तब भी सवाल कर सकते हैं। खुशहाल खान साहब के लिए भी कुछ तालियां, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था, वो आ नहीं सके मगर उन्होंने हमें जूम लिंक पे ज्वाइन किया था। तो आज के लिए जो कंक्लूजन है सेशन का वो ये है कि बातचीत के जरिए ही मामला हल हो सकते हैं, और अगर बातचीत का सिलसिला जारी करना है तो मेरा ख्याल है तमाम पैनलिस्ट